Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of Standard 6. Today we are going to learn about in Standard 6 in mathematics subject, and today's our topic is LCM. So the in last session we discussed about HCF, and in this today's lesson we are going to learn about LCM. So LCM यानी कि मुश्तरक ज़ो अज़ाफ़ अक़ल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, मीम ज़ाल अलिफ कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में हम LCM कहते हैं यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए आइए इसके बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो L stand for lowest, C stand for common, and M stand for multiple. So therefore we say it like LCM. Okay, so LCM यानी कि उर्दू में अगर हम बात करें तो हम इसे मुश्तरक ज़ो अज़ाफ़ अक़ल कहते हैं। ठीक है, तो मुश्तरक ज़ो अज़ाफ़ अक़ल को हम यहाँ पर मीम, उर्दू में हम इसे किस तरह से ज़ाहिर करते हैं, मीम मुश्तरक का मीम लेते हैं, ज़ो अज़ाफ़ का ज़ाल लेते हैं और अक़ल का अलिफ लेते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर मीम, ज़ाल और अलिफ, इस तरह से हम इसे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों, मीम, ज़ाल, अलिफ और LCM। ठीक है, इससे पहले हमने HCF देखा था, है ना, या जिसे हम उर्दू में अगर बात करें तो हम उर्दू में उसे मीम एन अलिफ यानी मुश्तरक आदे आज़म, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुश्तरक ज़ो अज़ाफ़ अक़ल के बारे में यानी मीम, ज़ाल, अलिफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर LCM से। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, इससे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सो फाइंड द LCM ऑफ 12 and 18. So you will see here we find the multiples of 12 and 18. So multiples of 12 are 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, and so on. And the multiples of 18 are 18, 36, 54, 72, 90, 108, and on. So you observed here definitely that these are the all numbers we are looking on screen are the tables of that number. Means you are observing these all numbers are the tables of 12, and in this row also you are observing that these all are numbers are the table of 18. So the multiples are all of the numbers of that table. Okay, so now we are supposed to pick up the common multiples. So which are the common numbers here? So you observe here that 12, 24 is not available here. So 36 is in both lines. Now you are observing 48 and 60. So these numbers are not available in the second line, but 72 is in both lines. Now move for the third one is 108. So here are the 108 number. Okay, so these three numbers we just find out the common multiples here. Now we are supposed to see here that which is the lowest number in this row. So you'll observe that this 36 is the lowest number. Okay, this 36 is the lowest number here. Okay, so now you can see here the lowest common multiple is 36. Okay, so like this we can find the LCM. Okay, this number is the LCM of 12 and 18. Okay, so like we are supposed to do, the
Find out the LCM of any number like this steps. So we are supposed to do here the exercise and practice set 25 is here. So first question is here, find out the LCM of the following 9 and 15. So here's the first question, this one 9 and 15. सो अब यहाँ पर देखेंगे 9 के अज़ाफ़ हमें यहाँ पर मालूम करना है पहले मल्टीपल्स ऑफ 9. So 9, 18 and so these are the table of 9 is the multiple of that number, means the multiples of 9 is the table of 9 is in simple sentence, in simple words we can say like this. And now you see here the 15, the multiples of 15s. So these are the multiples of 15. Okay, so the table of 15 is in already here on your screen. So you'll see here these two numbers 90 and 45 are the common multiples here. Okay, 9 and 15 is the common multiples. The common multiples of 9 and 15 are 45 and 90. So you will here observe that these all numbers are not available in the second row, but 45 is available here. And we can find out the 90 also. The 90, this one is available here. So we can like this easily mark out the multiples, the common multiples from both line, and thereafter which is the lowest number. यहाँ पर छोटा अदद अगर हम देखेंगे दोनों में तो हमें यहाँ पर क्या नज़र आएगा 45 और 90 में, तो 45 जो है तो छोटा अदद है 9 से, तो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 45. ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि मुश्तरक ज़ाफ़े कल हमें जो मिलेगा यहाँ पर 9 और 15 में, तो वो 45 है. इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है ना कि 9 और 15 का मीम जाल अलिफ जो है तो 45 है. इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है. ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 3 नंबर्स दिए हैं. ठीक है, अभी हमने 2 नंबर्स का ऑब्जर्वेशन किया था, यहाँ पर 3 नंबर्स दिया हुआ है, इसमें 2, 3, 5 है. ओके, सो फर्स्ट वी आर सपोज टू find out the multiples for 2, then 3. Okay, and thereafter we are supposed to find out the multiples for 5. Okay, so here we start from 2, so the table of 2 is here. Okay, find out the multiples for 3, so here's the table of 3. Okay, find out the multiples for 5, so here is the table for 5. So these are the multiples for 2, 3 and 5, and what we are supposed to find out here, which is the common multiples here. So when you are going to observe here that all in all which is the same number in both lines, so you'll find out here only this number is the least common multiples in 3 lines is 30. ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुश्तरक जो इजाफे कल अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर 30 मिलता है ना. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 30. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 2, 3 और 5 का मीम जाल अलीफ अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वो हमें यहाँ पर मिलेगा 2, 3, 5 का
30 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। द LCM ऑफ 2, 3 and 5 is 30। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है तो आप देख रहे हैं 28 दिया हुआ है और 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं तो मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड मल्टीपल्स ऑफ 28, ठीक है। तो 28 के अज़ाफ़ हमें मालूम करना है और इसी तरह से 12 के अज़ाफ़ मालूम करना है, ठीक है। तो 12 के अज़ाफ़ हम मालूम करेंगे स्क्रीन पर इस तरह से, इसी तरह से 28 के अज़ाफ़ मालूम करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुश्तरक यहाँ पर 12 और 18 के मुश्तरक अज़ाफ़ कौन से हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 84 जो है, ठीक है, यहाँ तक कि आपने देखा कोई नंबर नहीं है 84, और यहाँ पर आप देखेंगे 84 अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 168 है, ठीक है। तो 168 है यहाँ पर, यहाँ भी 168 है, इस तरह से। तो आप देखेंगे 28 और 12 के मुश्तरक अज़ाफ़ जो है तो क्या है 168 और 84 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो मुश्तरक जो अज़ाफ़े कल अगर हम देखें यहाँ पर तो वो हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 and 28 are 84 and 168। okay, so which are the lowest common multiples is 84। मुश्तरक जो अज़ाफ़े की बात करें अगर हम तो यहाँ पर हमें मालूम होगा कि 84 जो है तो मुश्तरक जो अज़ाफ़े है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 84। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 12 और 18 का मीम जाल अलिफ जो है तो 84 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इबारती सूरत में इसे लिखना होगा। एवरी टाइम जो आंसर होगा आपका तो इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है, याद रखिए इसे। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा है कि टेबल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। टेबल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर टेबल्स आपको याद है तो आप इजीली ये सवालात हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप के हैं यहाँ पर 20 and 15। क्या दिया है 20 and 15। सो द मल्टीपल्स ऑफ 15 एंड द मल्टीपल्स ऑफ 20, यानी 15 के अज़ाफ़ और 20 के अज़ाफ़ अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो इस तरह से हमें ये नंबर्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। 15 है ना, 30, 45, इसी तरह से 20, 40, 60 हैं, और इसी तरह से 120 और 60 हमें यहाँ पर जो है तो 15 और 20 के मुश्तरक अज़ाफ़ मालूम होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 60 है, यहाँ भी 60 अवेलेबल है। 120 हम देख रहे हैं यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 15 और 20 के मुश्तरक अज़ाफ़ जो है तो 120 और 60 हैं, ठीक है। तो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 15 and 20 आर 60 and 120। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों में जो है तो अगर हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं मुश्तरक जो अज़ाफ़े कल हमें यहाँ पर जो मिलेगा, द LCM ऑफ 15 and 20 इज़ 60, ठीक है। तो 15 और 20 का जो मीम जाल अलीफ है वो क्या है 60 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और 11 और 18 को देखते हैं यहाँ पर हम। तो 11 और 18 में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि 8 के अज़ाफ़ हम यहाँ पर मालूम करेंगे और 11 के अज़ाफ़ हम मालूम करेंगे, है ना। द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, द मल्टीपल्स ऑफ 11 आर हेयर। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे छोटा यानी अक्ल जो है मुश्तरक जो अज़ाफ़ अगर हम देखें यहाँ पर तो वो क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें 88, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि द LCM ऑफ 8 and 11 इज़ 88। ओके,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 और 11 का मीम जाल अलिफ जो है तो 88 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमें यहाँ पर इसे याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। किससे? हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, इसके बाद में जो है तो हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पर इबारती सवालात है उससे हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ठीक है, इबारती सवालात से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सवाल दिया हुआ है कि कवायद के लिए खेल के मैदान में बच्चों की ऐसी कतारें बनाई जाएं कि हर कतार में 20 या हर कतार में 25 बच्चे हों, तो तमाम कतारें पूरी होती हों और एक बच्चा ये बाकी नहीं बचता है। तो बताइए इस स्कूल में कम से कम कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हम देखते हैं कि कम से कम बच्चों की तादाद मालूम करने के लिए हमें 20 और 25 का मीम जाल अलीफ हम यहाँ पर मालूम करेंगे। ओके, क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है तो to find the least number of children we find the LCM of 20 and 25 here. So the multiples of 20 and 25 are 20 और 25 के अज़ाफ अगर हम देखें तो यहाँ स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स की बात होगी, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पर कि कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों नंबर्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो 20 हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर 20 में अगर हम यहाँ पर देखें और 25 में अगर देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 100 है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी 100 है। ठीक है, दोनों लाइन में। इसी तरह से यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 200 है। सो 200 and 100 is the common multiples of 25 and 20। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटा अक्ल मुश्तरक जो अज़ाफ जो है तो यहाँ पर 100 है ना। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 100। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 1 हमने यहाँ पर हल किया है बच्चों। द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन इज दैट स्कूल इज 100। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि इस स्कूल में कम से कम जो है तो 100 बच्चे हैं। इस तरह से यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं कि नसीम के पास कुछ मोती है, उसे मसावी मोतियों वाला हार बनाना है। उसने 16, 24 या 40 मोतियों का हार बनाया तो एक भी मोती नहीं बचा है। बताइए उसके पास कम से कम कितने मोती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस तरह से हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर 3 नंबर्स हैं ना। ठीक है, 16 है, 24 है और 40 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 24 and 40. So the multiples of 16 are here and the multiples of 24 are here. So the multiples of 40 के अज़ाफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस तरह से कि 16, 24 और 40 के जो अज़ाफ हैं वो इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुश्तरक अज़ाफ है अकल अगर हम यहाँ पर देखेंगे द मल्टीपल्स कॉमन, द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 240 here
द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 240। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे छोटा यानी अक्ल जो मुश्तरक जो अज़ाफ़ है वो क्या है, 240 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, याद रखिए इसे इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि an equal numbers of laddu have been placed in 3 different boxes. The laddus in the first box were distributed among 20 children equally. The laddus in the second box among 24 children, and those in the third box among 12 children. Not a single laddu was left over. Then what was the minimum number of laddus in the 3 boxes together? ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सवाल किस तरह से पूछा है। सवाल पूछा है कि 3 मुख्तलिफ डब्बों में मसावी तादाद के लड्डू रखे हैं। पहले डब्बे के लड्डू 20 बच्चों में, दूसरे डब्बे के लड्डू 24 बच्चों में, और तीसरे डब्बे के लड्डू जो है तो 12 बच्चों में मसावी तादाद में तकसीम किए जाते हैं, तो एक भी लड्डू नहीं बचता है। तो बताइए तीनों डब्बों में कुल मिलाकर कम से कम कितने लड्डू थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे। सोल्यूशन टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लड्डूज, वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 24 and 12. So the multiples of 20 are here, the multiples of 24 are here, the multiples of 12 is on your screen. So यहाँ पर हम देख रहे हैं 20 के अज़ाफ़ हमने निकाले हैं, 24 के अज़ाफ़ निकाले हैं और 12 के अज़ाफ़। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मुश्तरक अज़ाफ़ की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 120 यहाँ है, 120 यहाँ है, 120 यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह से 240 आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी आपको मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा और यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, यानी तीनों लाइन में हमें यहाँ पर जो है तो 120 और 240 ये नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे द कॉमन मल्टीपल्स इज 120 एंड 240। ठीक है, यहाँ पर मुश्तरक अज़ाफ़ की बात करें अगर तो 120 और 240 है। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 120। मुश्तरक जो अज़ाफ़ अक्ल अगर हम देखें यहाँ पर तो 120 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इसलिए हर डब्बे में जो है तो कम से कम हमें 120 लड्डू की तादाद इस तरह से मालूम होता है ना। Therefore the minimum number of laddus in each box is 120। ठीक है, तो तीनों डब्बों में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें इस तरह से मालूम होगा यहाँ पर कि 120 into 3 is equal to 360 है ना। The total number of laddus in 3 boxes are is equal to 120 into 3 is equal to 360। तो 3 डब्बों में हम देखेंगे यहाँ पर कि 360 लड्डू हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है the 360 laddus in the 3 boxes all together। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वी ऑब्जर्व द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑन द सेम बिग रोड। They turn green every 60 seconds, 120 seconds and 24 seconds. When the signals are switched on at 8 o'clock in the morning, all lights were green. How long after that will all 3 signals turn green simultaneously again? यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि दिया हुआ है कि एक शहर में किसी बड़े रास्ते पर 3 मुख्तलिफ चौक में हमने सिग्नलों का मुशाहिदा किया है। हर 60 सेकेंड, 120 सेकेंड और 24 सेकेंड में हरे होते हैं। सुबह 8 बजे सिग्नल जारी हुए तब वो तीनों सिग्नल हरे थे। इसके बाद कितने वक्त में तीनों सिग्नल एक ही वक्त में दोबारा हरे हो जाएंगे, ये हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि 60 है, 120 है और 24 है। इसका हमें मीम ज़ाल अलिफ मालूम करना होगा है ना।
we find the LCM of 60, 120 and 24. So multiples of 60 is 60, 120 and on, multiples for 120 and multiples for 24. So these are the multiples. Now we are supposed to find out the common multiples here. So the common multiples are 120 and 240. 120 here, and thereafter 240 is here. Okay, so these two numbers are the common multiples here. So the lowest common multiples is 120. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि मुश्तरक अज़ाफ़ 120 और 240 है, तो मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़े का अगर हम देख रहे हैं तो 120 हमें मिलेगा। ठीक है, तो 120 सेकेंड है। ठीक है, तो 120 सेकेंड यानी कि कितने मिनट हो जाएंगे? 2 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 60 सेकेंड का 1 मिनट है, तो 120 सेकेंड की कितने मिनट हो जाएंगे? 2 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों सिग्नल एक ही वक्त में 8:02 पर हरे हो जाएंगे ना। 8 में अगर हमने 2 मिला, 8 के आगे हमने 2 किया तो 8:02 हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल थ्री सिग्नल्स विल टर्न साइमल्टेनियसली ग्रीन अगेन एट 2 minutes past to 8 o'clock। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद बच्चों इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल हम देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप 13/45 और 22/75 की हम कीमत, हम नसब कसरे मालूम कीजिए और इनकी जमा कीजिए। ठीक है, गिवन फ्रैक्शंस 13/45 and 22/75 where there are equivalent fraction with the same denominators and add them। ठीक है, इस तरह का सवाल है ये। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है तो 45 और 75 का मीम साल अलिफ मालूम करेंगे। तो 45 के अज़ाफ़ अगर हम मालूम करते हैं सबसे पहले, तो वो हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से 75 के मल्टीपल्स अगर हम देखते हैं तो वो हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, तो 45 और 75 का मुश्तरक जो अज़ाफ़े कल अगर हम देख रहे हैं तो वो हमें 225 मिलेगा। ठीक है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 45 एंड 75 इज 225। ओके, first we find the multiples for 45, then we multiples of 75, then we find the lowest common multiples of 45 and 75 was 225। okay, now इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हम दी हुई कसरों को 225 नसब नुमा वाली कसरों में तहवील करेंगे। ठीक है, वी चेंज द गिवन फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 225। So 13/45 is equal to 13 into 5 upon 45 into 5 is equal to 65 upon 225. So 65. So here you will see here students that 13/45 is equal to 13 into 5 upon 45 into 5 is equal to 65 upon 225. Then 22/75 is equal to 22 into 3 upon 75 into 3 is equal to 66 upon 225. Okay, so you will see here that the 13/45 plus 22/75 is equal to 65 upon 225 and plus 66 upon 225 is equal to 65 plus 66 upon 225. So 65 plus 66 is equal to 131 upon 225. ठीक है, इस तरह से। So you will see here the equivalent fractions are 65 upon 25, 225 and 65 upon 225। ठीक है, और इनकी जमा अगर हम देखेंगे तो इनकी जमा हमें कितनी मिलेगी, 131 upon
225, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जवाब होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो भी सवालात आपके सामने रखे हैं वो आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें अपने तौर पर, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर से इजी फील होगा और आप आसानी से तमाम सवालात कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से अच्छा याद करने की टेबल्स को कोशिश करें, उसकी बिना पर आप इन सवालात को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए। सो स्टूडेंट्स, देयर इज some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।